I strongly recommend a protection and defense to all my doctor. In my opinion, if you follow 5 important steps, believe me, being a doctor, you will never be troubled. Never be troubled. First और बहुत important है medical record. How and what way medical record need to be kept plays a vital role. ऐसा नहीं कि हमने academic year में नहीं सीखा है. We have learned a lot in academic year, how to make a paper, how to write the OPD paper, how to write a IPT paper. But if we fail, and because of poor document, we lose a case. And it has been said, poor document, poor defense, good document, good defense, no document, no defense. So my friend, medical record maintain करना बहुत जरूरी है. OPD कैसे बनाना? Because your paper, the OPD paper, goes to n number of people because that is the property of the patient. That is the only piece of evidence patient has got. आपने जो लिखा वो लेके 10 के पास जाता है, लोग उसको भड़काते हैं. तो क्या लिखना ओपीडी पेपर, ओपीडी पेपर कैसे बनाना, क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है. सेम अप्लाइज टू योर कंटिन्यूएशन शीट कि अगर आप कंटिन्यूएशन शीट 4 बार पेशेंट को बुला रहे हो और हर बार एक पेपर बना रहे हो तो वो रोल बहुत बड़ा प्ले करता है. प्रोसीजर के अंदर कंसेंट पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. हॉस्पिटल सेटअप के अंदर आईपीडी पेपर बहुत बड़ा रोल, डिस्चार्ज समरी, एडमिशन फॉर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. माय फ्रेंड, आपका मेडिकल रिकॉर्ड अगर अच्छा है तो बिलीव मी माय फ्रेंड, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू. आई हैव वॉन्ड मल्टीपल केसेस इन रिस्पेक्ट टू मेडिकल रिकॉर्ड. मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ. देयर वाज अ केस ऑफ अ कॉस्मेटिक डोमेन वेयर पेशेंट वाज पोस्टेड फॉर लेजर हेयर रिमूवल. 8th सिटिंग में डॉक्टर को डिजायरेबल रिजल्ट नहीं था तो उसने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, लीडेड टू स्किन बर्न. Patient went, which got treated. Patient went to the consumer for causing skin burn. Doctor was बहुत अच्छा defense था consent paper. He submitted a consent paper to the court and narrated to the court that I have taken all the precaution and patient was well explained about the known complication. She read it, she signed it, she willingly gone for the procedure. Court has accepted this medical record and doctor को छोड़ दिया उन्होंने, no compensation. लेकिन मेरे friend, बिलीव करना ओरली कि हमने लिख दिया है इज नॉट गोइंग टू बी डिफेंस. आई स्टिल रिमेंबर अ केस जहां न्यूरोसर्जन ने लंबर पंचर के पेशेंट को पोस्ट किया. पेशेंट का डेथ हुआ ब्रेन हर्निया से या किसी और रीजन से. Complainant has filed a complaint for causing a severe pain during the procedure, not on medical negligence, was causing a pain. And he narrated the court when my sister was taken to the procedure, she cried and having a shouting with the pain. When I rushed to the procedure room, I found that 2 doctors were holding my sister. 2 people were holding my sister. Doctor was injecting something in the back. That was the LP procedure. Doctor ने अपने आप को डिफेंड किया कि नहीं, I have followed standard protocol of treatment और मैंने local anesthesia दिया था. पेन तो हो ही नहीं सकता. लेकिन when record was observed, nowhere LA word was or local anesthesia word was mentioned. Very difficult to understand कि दिया था कि नहीं दिया था. Court has presumed that LA दिया ही नहीं था and gone against the doctor. So not mentioning, like बहुत सारे केसेस आप जाके देख लीजिए. सादा CLW हम लोग करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, सादा टूथ एक्सट्रैक्शन करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, बट वी डोंट राइट ऑन द पेपर. क्या डिफरेंस रहेगा आपके पास? So you need to have a very good focus on a medical record, my friend. How and what way need to be done, you need to understand. I will tell you how you are going to understand about these papers. Second defense बहुत strongly recommend करता हूँ, my friend. Criminal liability में कोई डरने की बात नहीं. Have a good advocate with you who can present. But civil liability में मैं आपको recommend करूँगा go for customized professional indemnity policy, जिसकी वजह से सारे civil liability cover हो जाए आपके. Customize का मतलब क्या होगा? जैसे डॉक्टर्स रिस्क मेडिको लीगल सर्विसेज के अगर वेबसाइट पे जाओगे doctors.com पे तो आपको इस तरह की पॉलिसी मिल जाएगी. इसके अंदर कैसा है 1:1, मतलब अगर मान लो आपके पास 50 लाख की या 1 करोड़ की पॉलिसी है तो एनी नंबर ऑफ केसेस इज कवर्ड अंडर दैट. एक केस नहीं, 10 केस भी इसके अंदर कवर्ड है. अगर आपके पास पॉलिसी है तो सारे लीगल फीस कवर्ड है. मैंने आपको बताया कि नया लॉ क्या बोलता है, कंप्लेनेंट कैन फाइल अ कंप्लेंट वेयर ही रिसाइड ओवर अगेन. तो ऑल इंडिया कंप्लेन होना है. आप बॉम्बे में बैठ के ट्रीट करो बिहार के पेशेंट को तो बिहार का पेशेंट तो बिहार में जाके कंप्लेन करेगा. लेकिन आपकी पॉलिसी में लीगल फीस कवर होने से आपको डरने की जरूरत नहीं. कैन अपॉइंट अ गुड लॉयर देयर. नॉट ओनली दैट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इन इंडिफेंसिबल केसेस, कैशलेस मतलब कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं. इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली पे करेगी. लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, ऑनलाइन कंसल्टेशन, सेकेंड ओपिनियन, टू द एक्सटेंट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट एंड everything has been covered.
Not only that, laser, LASIK, everything is covered. And most importantly, all types of cosmetic covered. एक ही कस्टमाइज पॉलिसी इस कंट्री में अवेलेबल है जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है. गो फॉर सच पॉलिसी. एक बार आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट हाथ में है, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, 500 से 1000 रुपए पर मंथ, नॉट मोर देन दैट. लेकिन अगर आपके पास पॉलिसी है तो सिविल लायबिलिटी में आपको डरने की जरूरत नहीं. अगर पेशेंट आपको इरिटेट करता है, पोटेंट लिटिगेंट है, उसको जेरोक्स दे दो पॉलिसी का, बोलना गो एंड फाइल द केस, आई एम प्रोटेक्टेड, लेट देम गो टू द कोर्ट. आपको तो लीगल फीस देनी नहीं है, आपको तो एडवोकेट को अपॉइंट नहीं करना है, आपको एडवोकेट के चार्जेस नहीं देने हैं, आपको कंपनसेशन नहीं देने हैं, तो व्हाई टू वरी अबाउट दिस. सो हैव अ फुल प्रोटेक्शन विद न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, प्रोवाइडिंग अ प्रोफेशनल इंडemnity पॉलिसी थ्रू डॉक्टर्स रिस्क. अ कॉर्पोरेट पॉलिसी होने से एक फायदा है कि आपका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होता और एक्सपर्ट्स आपके केस को लड़ते हैं. इसके साथ और एक एडिशन दिया है जो डॉक्टर्स मेडिको लीगल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन करती है. ये 20 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर्स मेडिको लीगल सर्विसेज जो 20 ईयर्स से काम कर रही है, हजारों डॉक्टर को प्रोटेक्ट किया है. तो दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स यू अ लॉट बिकॉज बहुत जगह पे इंडेमनिटी पॉलिसी कम्स इन ए पिक्चर व्हेन case get registered against you, but professional indemnity policy is going to be useful there, but no doctor wanted to have a case against them. So pre protection बहुत जरूरी है. इंडेमनिटी पॉलिसी वो सब नहीं करती. सो प्री लिटिगेशन सपोर्ट सिस्टम. मान लो पेशेंट आके चिल्ला के जा रहा है, यू नीड टू हैव अ पोटेंट, यू फील दैट इट इज गोइंग टू बी पोटेंट लिटिगेंट, कॉल योर मेडिकल लीगल सर्विस प्रोवाइडर, आस्क देम हाउ टू audit your medical record, make a foolproof medical record which goes in hand of the patient. Not only that, answer a notices in such a way that it does not go to the court of law. This is going to be a peaceful time to you. During litigation, मान लो टेबल डेथ हो जाए, मान लो एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाए, भले कोई पेशेंट आगे चिल्ला के जाए अपने ट्रीटमेंट के लिए आपको परेशान कर रहा है, कॉल योर मेडिकल लीगल सर्विस प्रोवाइडर, मेडिकल लीगल एक्सपर्ट विद देयर एक्सपीरियंसेस. लाइक आई हैव हैंडल्ड 18-20,000 केसेस, एक भी केस कोर्ट में नहीं गया होगा, 0.1% भी नहीं गया होगा. कहने का मतलब राइट टाइम नॉलेज शेयरिंग हेल्प्स अ डॉक्टर. इनके लिए इफ यू कॉल अ मेडिको लीगल एक्सपर्ट, दे विल हेल्प यू विद देयर नॉलेज ऑफ मेडिकल लॉ, व्हाट प्रोटेक्शन एंड प्रिपरेशन यू नीड. आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है, टेबल डेथ भी हो गया है, एक्सचेंज ऑफ पेपर, हाउ टू हैंडल द मॉब, हाउ टू हैंडल द मीडिया, हाउ टू हैंडल थिंग्स, अंडरस्टैंड फ्रॉम मेडिको लीगल एक्सपर्ट, दे आर द बेस्ट पीपल. ये सब इंडेमनिटी पॉलिसी में नहीं है. नॉट ओनली दैट, पोस्ट लिटिगेशन एडवोकेट्स आर वेरी गुड, लेकिन उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपकी जरूरत पड़ती है. एस्पेक्सिया, हाइपोक्सिया, न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, उनके लिए सब नया वर्ड है और आपके पास वक्त नहीं रहा तो दैट नेचुरली केसेस गो टू गो अगेंस्ट हिम. प्रॉब्लम क्या होता है कि दे आर अवेलेबल इन इवनिंग एंड यू आर बिजी इन इवनिंग, सो दैट द रीजन बोथ डज नॉट मीट ईच अदर. सो आपका मेडिको लीगल एक्सपर्ट क्या करता है, ब्रिज का काम करता है, ड्राफ्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिपरेशन, अपीयरेंस, एवरीथिंग डन बाय मेडिको लीगल एक्सपर्ट. तो आपकी ये पॉलिसी मेडिको लीगल सर्विस पॉलिसी डॉक्टर्स रिस्क के पास अवेलेबल है एंड बोथ कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है doctors.com में, कि आप चाहिए तो मेडिको लीगल सर्विस लेके साथ में इंडेमनिटी भी कवर कर लो, डबल प्रोटेक्शन. सो देयर इज नो क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू बी ट्रबल्ड ऑफ. सो दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन इन सिविल लायबिलिटी माय फ्रेंड. ऑफ कोर्स इसके अंदर आपका पूरा क्रिमिनल कोर्ट केसेस कवर्ड है, इसके अंदर आपका मेडिकल काउंसिल के केसेस कवर्ड है, इसके अंदर आपके सिविल कोर्ट के केसेस कवर्ड है. तो ब्लैंकेट डिफेंस आपके पास अवेलेबल है. हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो तो टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट. लाइक इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन चार्टेड अकाउंटेंसी और फाइनेंस, यू डू कनेक्ट सीए, you do contact CS, you do contact advocate, you do contact various other expert people. So when and by you pay that. प्लम्बर की जरूरत पड़ गई, you pay a plumber. So same way medical legal experts को you be connected to them, pay them for yearly charges and have an expert in your fingertip so that you can be protected in any given scenario situation. So that is another defense. For the defense, upgrade your medical knowledge. Aaj because of doctors we got connected, something new must have been gone your mind. कुछ तो नया आपने देखा होगा, सुना होगा. सेम वे जैसे मैंने बोला मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए हाउ टू मेंटेन अ मेडिकल रिकॉर्ड, हाउ टू डू द थिंग्स, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गेटिंग कनेक्टेड टू मेडिको लीगल एक्सपर्ट एंड अपग्रेडिंग योर नॉलेज. मेरे खुद के काफी वीडियोस मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर काफी बोला हुआ है. ओपीडी पेपर पे 3 सेशंस किए हैं, कंसेंट पे 3 सेशंस होंगे, आईपीटी पेपर पे 5-6 सेशंस होंगे. ये डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पे होगा या कहीं तो भी अवेलेबल होगा. अपग्रेड योर नॉलेज ऑफ मेंटेनिंग अ मेडिकल रिकॉर्ड. नॉट ओनली दैट, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ वेल एजुकेशन सोसाइटी गिव्स.co.in पे जाओगे या गिव्स.org.in पे जाओगे
तो दे रन अ कोर्स ऑफ मेडिको लीगल कंसल्टेंट। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे डॉक्टर पार्ट टाइम करियर बनाना चाहते हैं, जब उनका दोपहर का टाइम फ्री है या फिर अपने नाम को कमाने के लिए करना चाहते हैं, तो दे कैन बिकम अ मेडिको लीगल कंसल्टेंट, जो अपने आप को ही नहीं बचाता बट पूरे कम्युनिटी को बचा सकते हैं। जैसे आई कैन हैव माय रिप्लिकास अवेलेबल एवरीवेयर। So Global Institute is running a medico legal consultant course. It is a 3 months online courses with every support system given to the global, including the platform to run your business part-time or full-time, whatever you want. Yes, मैं पूरा सेशंस आपके लिए क्रिमिनल लायबिलिटी का, सिविल लायबिलिटी का, मेडिकल काउंसिल का, कोर्ट में कैसे केस लड़ना, कोर्ट के नोटिस को आंसर कैसे देना, लोगों के नोटिस कैसे देना, ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट, सारी चीजें, सारा सब कुछ उसमें सिखाया जाता है, so that you can also start a career in medico legal consultancy, or you can use for self defense also. So upgrading knowledge is going to be very helpful to you, that you can start, क्योंकि medico legal consultant का मैंने देखा है कि NABH accreditation के लिए हॉस्पिटल में एंट्री लेवल पे मेडिको लीगल अवेयरनेस मांगने लग गए हैं। So every hospital needs a medico legal consultant, every people needs a medical legal consultant, every health startup needs a medical legal consultant, every doctors and professionals need a medical legal consultant, and there is a scarcity of medical legal consultant. Not only that, my friend, starting a startup in medical legal is another new domain where part-time, full-time job can be done by the people. Job के लिए priority is definitely given if you got a knowledge of that. बहुत सारे benefits हैं जो आप gain कर सकते हैं. If you really wanted to become a medical legal consultant, yes, you can go to Global Institute, gives.co.in, और उनसे discuss कीजिए. You will have such courses available for you where you can really transform yourself with education. Fifth, हमेशा याद रखो, ट्रेनिंग इज वाइटल रोल प्लेयर इन टुडेज एरा। आप जितने भी एमएनसीज को जाके देखो, दे इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑन एम्प्लॉइज टू ट्रेन देम। वी आर इन सर्विस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग प्लेज अ वाइटल रोल। रिजल्ट अगर आपने अच्छा दिया तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही। आज पैरामेडिकल स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, एटीट्यूड की, बिहेवियर की, चीजों की, तो लिटिगेशन रिड्यूस होते हैं एंड रेपुटेशन इंक्रीज होता है। सेम अप्लाइज टू द क्लिनिक, कि आपके असिस्टेंट को, आपके रिसेप्शनिस्ट को, आपके डिस्पेंसर को, इन सबको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो योर रेपुटेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। पीपल विल से यस, वी शुड गो टू दिस क्लिनिक। सो दीज आर द ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अपग्रेडेशन के साथ साथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे केसेस देखा है जो क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड स्टाफ के मिस्टेक से होता है। गिविंग रॉन्ग इंजेक्शन, ये पेशेंट का इंजेक्शन इसको दे देना, पेशेंट का डेथ हो जाए, डिलीवरी खुद ही कर लेना, बिगर कंसल्टेंट को बुलाए, कई बार ओवरडोज दे देना विदाउट कंसल्टेंट को पूछे, मेडिकल रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन नहीं करना। पेशेंट को नीड है तो आप बिजी रहते हो फोन पे, यू नो, रिसेप्शनिस्ट का एटीट्यूड अलग रहे, अकाउंटेंट का। So lots of cases are cropping up in a country. I know a case where angioplasty was posted by a cardiologist. 7 sons were well explained that patient has got acute MI, chances of survival is absolutely no. And only on the basis of all explanation counseling, patient was taken for angioplasty. All the sons were very clear that my father is not going to survive. Medical mishap happened, patient died. कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि उन सबको मालूम था कि डॉक्टर ने बता दिया था, बचने के चांस नहीं, सब कूल थे। लेकिन बॉडी को लेने के लिए वो अकाउंटेंट के पास गए, अकाउंटेंट को बोले आप क्लियरेंस का दे दो। अकाउंटेंट ने देखा कि 1 लाख रुपए डिपॉजिट है उसका, टोटल बिल हुआ है 86,000 रुपीज, 14,000 उसको वापस करना था। लेकिन अकाउंटेंट को जिस तरह से बताया गया था, शी सेड गो टू पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, क्लियर 4,000 रुपीज ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन, ब्रिंग दैट स्लिप टू मी, देन आई विल क्लियर योर बिल एंड गिव अ क्लियरेंस फॉर टेकिंग अ बॉडी। रिलेटिव ने बहुत प्यार से बोला कि देखो, वी लॉस्ट आवर फादर, 14,000 आपके पास पड़ा हुआ है, यू कीप ऑल 14,000, वी विल कम एंड टू सेटल द अकाउंट लेटर, 4,000 आप अपनी तरफ से दे दो, बट गिव अ क्लियरेंस सो दैट वी कैन टेक अ बॉडी। ये जब बातचीत करके वहां से निकले, रिसेप्शनिस्ट ने फिर से आर्ग्यूमेंट किया एंड शी आर्ग्यूड, शी बिहेव्ड वेरी डिफरेंटली एंड दैट लीडेड टू ईगो हर्ट ऑफ दैट पेशेंट। 7 बच्चे, उनके 2 फ्रेंड, अराउंड 21 पीपल वेयर देयर। उन्होंने 5 मिनट के अंदर पूरा हॉस्पिटल वेंटिलाइज कर दिया। आप सोचो हाउ इंपॉर्टेंट इज द ट्रेनिंग ऑफ दीज पीपल। सो यू कैन ट्रेन योर पीपल, यू कैन ट्रेन थ्रू मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स, यू कैन बिकम अ मेडिको लीगल ट्रेनर, or you can put yourself in a training of your staff and you can train your people
so that litigation will reduce and of course reputation will reduce. एरर ओमिशन पॉलिसी बहुत लोगों को नॉलेज ही नहीं है माय फ्रेंड. आप मेडिकल सेंटर चलाते हो, भले हो आपकी क्लिनिक हो, डेंटल क्लिनिक हो, आपकी पर्सनल क्लिनिक हो, आपका सेंटर हो जहाँ कुछ लोग विजिट करते होंगे, या आपका हॉस्पिटल हो, ये सारी चीजों को अब बहुत जरूरी हो गया है कवर करना. जैसे प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी है, वैसे सेंटर मेडिकल सेंटर स्टेब्लिशमेंट पॉलिसी है. कई जजमेंट आ चुके हैं कि एम्प्लॉइज की मिस्टेक के लिए एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है. तो जो सैलरी डॉक्टर है उनके लिए भी हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है, आपके स्टाफ के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, और आपके स्टाफ के मिस्टेक से अगर आप पे केस बनता है तो यू नीड टू पे फ्रॉम योर पॉकेट. नॉट ओनली दैट, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड स्टाफ कवर होना जरूरी है, आरएमओ कवर होना जरूरी है, सीएफओ सीईओ कवर होना जरूरी है, नॉन मेडिको ओनर कवर होना जरूरी है. और ऐसे जजमेंट आए हैं कि 90% तक लायबिलिटी इज गोइंग टू बी ऑन अ मेडिकल सेंटर. 90%. आई एम टॉकिंग अबाउट, there was a case where it was narrated to the court that in cranial surgery, neurosurgeon gets only 20,000 rupees out of 4 lakh billed by the corporate hospital. So margin of profit is huge. So court ने order दिया कि hospital need to pay remaining amount, doctor have to pay 10 lakhs. Means around 95% hospital has paid. वो precedent बन गया. Today, if your medical center has made a policy or made a party, the 90% liability is going to be on that. तो जिस तरह से प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी है, वैसे ही मेडिकल सेंटर पॉलिसी है. छोटा सेंटर हो, कॉस्मेटिक सेंटर हो, बड़ा सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, हर चीज के लिए देयर इज डेफिनेटली अ ग्राउंड. सो माय रिक्वेस्ट माय फ्रेंड टू ऑल माय लर्नर हियर, प्लीज प्रोटेक्ट योरसेल्फ विद द प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी. मोर यू टेक, मोर यू विल बी बेनिफिटेड. सो हैव अ प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी. वन, हैव अ एरर ओमिशन पॉलिसी. सेकंड, मेरा कहने का मतलब है कि आज के डोमेन में अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो आपके पास इन चीजों का होना जरूरी है. देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू माय फ्रेंड. नहीं तो फ्रिवलस केसेस कोर्ट पे जाएंगे, लीगल फीस में ही आप स्ट्रेस में आ जाओगे, क्योंकि लीगल फीस ही 2-3 लाख रुपए है. सी डॉक्टर भले ही हमने फाउंड किया है, बट टुडे इफ आई गेट अ केस ऑफ नॉन मेंबर्स, आई चार्ज देम 2 लाख 3 लाख रुपीज, जबकि वो 2-3 लाख रुपए पूरे लाइफ के लिए डॉक्टर से जुड़ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सर्विस ले सकता है. बट प्रॉब्लम क्या है कि वी आर नॉट विजिलेंट एनफ. बट आई विल एडवाइज माय फ्रेंड टू ऑल माय डॉक्टर्स हियर टू अवॉइड क्रिमिनल लायबिलिटी, टू अवॉइड सिविल लायबिलिटी, टू अवॉइड मेडिकल काउंसिल लायबिलिटी. इट इज मैंडेट फॉर यू टू हैव अ प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी फ्रॉम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी, जो कि कस्टमाइज डिफाइन किया है doctors.com पे आपको मिल जाएगा. जैसे ऐसे 1:1 पॉलिसी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कैशलेस पॉलिसी कवरिंग ऑल कॉस्मेटिक्स, लीगल फीस कवर्ड, एवरीथिंग इज देयर इन पॉलिसी. हैव अ प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी. एडवाइजेबल टू हैव अ 1 करोड़ पॉलिसी. सर्जन जितने भी हैं उनको मैं तो एडवाइस करूंगा 1 करोड़ के नीचे नहीं लेना, क्योंकि 10-10 करोड़ के केस जा रहे हैं. फिजिशियन के लिए 50 लाख इनिशियल फेज में ठीक है, लेकिन 1 करोड़ लेना चाहिए. जनरल प्रैक्टिशनर के लिए भी 50 लाख to 1 करोड़, क्योंकि 2-3 केस भी आ गए, 4 भी केस आ गए तो सारे कवर्ड हो जाते हैं. एवरेजली 1 करोड़ की पॉलिसी इज नॉट कॉस्टिंग मच, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट. अभी भी हमारी कंट्री में बहुत पीनट अमाउंट है. अगर मैं जीपी की बात करूं तो भी 5-6,000 रुपीज ईयर. अगर कंसल्टेंट की बात करूं तो भी 10-12,000 ईयर. मैक्सिमम सर्जन की बात करूं तो 15,000 to 18,000 ईयर फॉर ऑल 1 करोड़ पॉलिसी. बड़ा अमाउंट नहीं है माय फ्रेंड. उसके अंदर मेडिको लीगल सर्विस कवर्ड है इंडेमनिटी के साथ में. सो बेस्ट डील कि एक भी केस आ गया तो लीगल फीस ही आपके 1.5 लाख चले जाएंगे. सो हैव अ प्रोफेशनल इंडेमनिटी फ्रॉम doctors.com. हैव error omission policy, hospital policy. Ask the people of doctors to know about this more. Upgrade your medical law knowledge. You can go to Global Institute of Medicine Society or gives.co.in, gives.org.in to find such a courses, and you can become a medical legal consultant. You can become a medical legal trainer for training all paramedical staffs. You can start a part-time career in this field. Allied to your medical field. आपके फील्ड के बाहर नहीं जाना है. Properly medical record किस तरह बनाना, you learn from all the YouTube, or you can regularly attend the sessions where I'm going to talk about OPD paper, or where I'm going to talk about certification, or where I'm going to talk about the IPD papers. To attend such a session to upgrade your knowledge how the papers need to be made for the better judgment in our favor in court of law. So have a good medical record, train your paramedical staff, upgrade your law knowledge, have a professional policy and information policy from doctors. You can go on doctors.com, और my people may call you for the feedback people, feedback के लिए कि आपको सेशन कैसा लगा, आप कोई नया टॉपिक और जानना चाहते हो क्या, आप कंटिन्यूस एजुकेशन में रहना चाहते हो क्या, आप मेडिकल लॉ अपग्रेड करना चाहते हो क्या.
बहुत सारे फीडबैक के लिए हमारे बंदों का कॉल आ सकता है. Respect their call, give your time because they are going to safeguard your life. They are going to safeguard your practice. Get more information from them. Definitely try to get more information so that you can be more prepared for next sessions, next lectures, or whatever topic you need. So Dr. Risk gives.co.in is going to give you a lot of things for your benefit. So you can connect to that, get knowledge, and go with that.